Hello students, myself Rakesh Misra. As per your demand, here I have bring you the sample paper and their review that recently uploaded by CBSE. This is all about video for class 10th students who are going to appear for examination session 2020-21. This is very essential video for all those students who are in doubt regarding the question paper and their modules. Actually, due to corona pandemics, CBSE has reduced 33% lesson from each subject. In that series, the same percentage of lesson get reduced from science, subject code 086. But as you all know, biology is one of the important part of science. The overall marks will remain as usual as like the previous year, that is 80. Out of 100, the 20 marks will assessed from the home examination and rest 80 marks will be in your question paper. Out of 80, the 33% question, that is almost 27 marks question belong to biology, and rest 66% question will be from the physics and chemistry. Here in this video lecture you will learn whatever the important questions that are recently uploaded through the sample paper 2020-21. So without delay timing, let back over the question and revise them thoroughly and search the possible answer. And here I have requested you to note down the important question that is still in this sample paper from the biology, physics and chemistry separately, and through the video lecture you will get the solution of that particular questions in the till the ends. You will find every questions and every types of their concept is actually clear related to biology. As you all know, the overall lesson get finished in the previous month, but the question paper that is still pending for the revision is still actually revised in this video lecture. So without delay timing, let back over the question paper and revise them thoroughly. Now the question paper, you can see the sample paper 2020-21 साइंस सब्जेक्ट कोड 086, मार्क्स कितना रहेगा 80, टाइम आपको कितना मिलेगा 3 घंटे का, ठीक है। जनरल इंस्ट्रक्शन आप जरूर पढ़ लेंगे, ठीक है। उसमें पहला इंस्ट्रक्शन है द क्वेश्चन पेपर कंप्राइज 4 सेक्शन ABCD, देयर आर 36 क्वेश्चन इन क्वेश्चन पेपर, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। इसका मतलब क्वेश्चन पेपर में आपको जो मिलेगा वो 36 क्वेश्चन रहेगा, 36 क्वेश्चन, ठीक है। सेक्शन ए, अब देखो 4 सेक्शन ABCD करके 36 क्वेश्चन का 4 सेक्शन, और सभी सेक्शन आपको कंपलसरी है, सभी क्वेश्चन कंपलसरी है, सभी क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन सेकंड इंस्ट्रक्शन में क्या दिया है। देखो इंस्ट्रक्शन आपको जो भी मिलेगा, इंस्ट्रक्शन आप जरूर पढ़ लेंगे, वहाँ से अगर कन्फ्यूजन हुआ तो फिर बाद में आपको बड़ी प्रॉब्लम होगी। सेक्शन ए क्वेश्चन नंबर 1 to 20, यानी कि सेक्शन ए में कितना है, क्वेश्चन नंबर 1 to 20। ऑल क्वेश्चंस एंड पार्ट्स देयर ऑफ आर 1 मार्क्स ईच, यानी कि इस क्वेश्चन में, इस सेक्शन में 1 to 20 जितने भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन 1 मार्क्स के हैं, ठीक है। दीज क्वेश्चंस कंटेन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQs, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप एंड असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन। देखो इससे पहले जितने भी सीरीज ऑफ वीडियो आपने रिवीजन देखा होगा उसमें असर्शन रीजन, MCQs, फिल इन द ब्लैंक्स, मैंने हर तरह से क्वेश्चन आपको करवाया। मैंने बोला ये कॉन्सेप्ट बेसिस है, 1 मार्क्स था जिसमें आपको टाइम देना था, और सबसे बड़ी चीज़ है कि उसमें आपका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं रहेगा तो गलत कर दोगे। उसमें 2 ही ऑप्शन होता है, या तो गलत होता है या तो सही होता है। देखो लॉन्ग आंसर टाइप में आप बना के लिख सकते हैं, MCQs, फिल इन द ब्लैंक्स, असर्शन रीजन में आप बना के नहीं लिख सकते, उसमें या तो सही होता है या फिर गलत, इसलिए वहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना ही पड़ेगा, ठीक है। आंसर टू दीज शुड बी गिवन इन 1 word और 1 sentence, यानी 1 to 20 क्वेश्चन जितने भी हैं उसको या तो आपको 1 word में या फिर 1 सेंटेंस में आपको आंसर देना है। अब आते सेक्शन बी, क्वेश्चन कंसिस्ट 21 to 26 आर शॉर्ट आंसर टाइप कैरिंग 2 मार्क्स, यानी कि 2 नंबर के क्वेश्चन है। आंसर ऑफ दीज क्वेश्चन शुड बी इन द रेंज ऑफ 30 to 50 वर्ड्स। अब देखो 30 to 50 वर्ड्स तो वर्ड टू वर्ड काउंट करने नहीं जाना है, सीधे ही आप जान लीजिए कि 2 to 3 लाइन्स में आपको 2 मार्क्स की क्वेश्चन 2 to 3 लाइन्स में, यानी बिलो हाफ पेज में कंप्लीट कर लेना है, ठीक है ना। हाफ पेज से कम में इसको कंप्लीट करना है।
2 मार्क्स के हैं तो 2 to 3 लाइन्स में, ठीक है। क्वेश्चन को देखते ही आप समझ जाएंगे कितने नंबर में और कितने कैसे इसको करना और कितना इसका एक्सपेक्टेड आंसर होगा, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना। सेक्शन सी क्वेश्चन नंबर 27 to 33 आर शॉर्ट आंसर टाइप एंड कैरिंग 3 मार्क्स, यानी कि सेक्शन सी में 3 मार्क्स, सेक्शन बी में 2 मार्क्स के और सेक्शन 1 में 1 मार्क्स के क्वेश्चन है। सेक्शन सी में जो हमारा 27 to 33 क्वेश्चन है 3 मार्क्स के, उसके आंसर आपको देने हैं 50 to 80 वर्ड्स में। इट मीन्स आपको कितना लिखना है, हाफ पेज से अराउंड हाफ पेज लिख लेना है, ठीक है ना। अराउंड हाफ पेज इसके आंसर आपको लिखना है जो 3 मार्क्स के हैं। हाफ पेज से ज़्यादा भी हो सकता है, मीन्स हाफ एंड मोर देन हाफ पेजेस, बट नॉट एक्सीड 1 पेज। क्लियर है। अब आते हैं इंस्ट्रक्शन नंबर 4 पे, सेक्शन डी। द क्वेश्चन नंबर 34 to 36 आर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन कैरिंग 5 मार्क्स। अब इसमें क्या है, 80 to 120, इट मीन्स आपको 2 पेज अप्रॉक्स 2 to 2.5 पेज, इट मीन्स 2 से 2.5 पेज आपको कर लेना है, मैक्सिमम 3 पेज भी जा सकता है, लेकिन आप जो है इसको आप कर सकते हैं। देयर इज़ नो ओवरऑल चॉइस, इसका मतलब क्या है कि आपको 36 क्वेश्चन है, उसके अलावा एक्स्ट्रा और क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे, जितने भी क्वेश्चन रहेंगे उसी में करना है। हाउएवर इंटरनल चॉइस हैव बीन प्रोवाइडेड इन द सेम क्वेश्चन पेपर, यानी कि 36 में ही आपको ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे और टाइप होता है ना, 36 मान लो क्वेश्चन है तो इसमें एक क्वेश्चन हो गया नहीं आ रहा तो उसमें 5 मार्क्स में दो आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, यानी कि आप चाहे पहले को अटेम्प्ट करो या दूसरे को, दोनों को अटेम्प्ट नहीं करना है, ठीक है। स्टूडेंट हैज़ टू अटेम्प्ट ओनली वन ऑफ द अल्टरनेटिव इन सच क्वेश्चन, यानी कि मैंने अभी बोला कि इसमें से कोई एक ही करना, और टाइप पे जितना रहेगा एक ही करने, नहीं तो आपको नुकसान उठाने पड़ सकते हैं, ठीक है ना। बहुत सारी चीज़ें जिसमें आपको नहीं पता रहेगा तो नुकसान उठाना पड़ सकता है, तो ऐसे ही अल्टरनेटिव क्वेश्चन में जो आर टाइप करेगा दोनों आप करेंगे तो आपको नुकसान उठाना पड़ जाएगा, ठीक है। तो पहले से मेंटली प्रिपेयर हो जाइए एग्जामिनेशन के लिए। अब क्वेश्चन हमारा शुरू हो रहा है। सेक्शन ए, हम सिर्फ बायोलॉजी ढूंढते हैं, ठीक है। तो बायोलॉजी सीधे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। बायोलॉजी इस साल सीधे 10 पे दिया है। 10 में पहला जो क्वेश्चन है बायोलॉजी का वो क्या दिया है, वेन्स आर थिन वॉल्ड एंड हैव वॉल्व्स, जस्टिफाई द स्टेटमेंट्स। बोल रहा है वेन का जो वॉल होता है वो थिन होता है, पतला होता है, और वॉल्व होते हैं। क्यों? देखो, थिन वॉल का अलग रीजन है और वॉल्व का अलग रीजन है। वॉल्व मीन्स क्या होता है, ये वेन है तो वेन का स्ट्रक्चर ऐसे होता है अंदर, देखो आर्टरी में भी वॉल्व होता है और वेन में भी वॉल्व होता है। वॉल और वॉल्व में डिफरेंट होता है, यहाँ जानना है, वॉल और वॉल्व, ठीक है, दोनों में डिफरेंट होता है। वॉल मीन्स क्या होता है, दीवाल, और वॉल्व मीन्स नल का वॉल्व। देखे हो कि पानी नल में भर जाता है तो फिर नल से पाइप में नहीं जाता है, ऐसा वो बना होता है कि सिर्फ यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है। ऐसे आप मोटर में भी वॉल्व लगते हैं, हर चीज़ में भी वॉल्व लगते हैं, ठीक है ना। तो ये वॉल्व इस साइड से इस साइड तो ब्लड फ्लो होगा, लेकिन बैक फ्लो नहीं होगा। तो लिखेंगे द वॉल्व इन साइड द वेन प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड एंड रिमिक्स विद द ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इट मीन्स ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ये मिक्स ना हो, इस वजह से वॉल्व जो है वो प्रिवेंट करता है बैक फ्लो ऑफ ब्लड। लिख लेना कॉपी में। थिन वॉल्ड क्यों होता है, लाइव क्लासेस में मैंने बताया था कि एज वी नो दैट ओनली 80 mm Hg pressure will applied over the vein from the heart, which is very less than the 120 mm Hg pressure to compare than the artery. So there is less chance to break down, or there is less chance to break up the veins wall. So the veins wall are thin. ये आप कॉपी में लिख लीजिएगा कि वेन का जो वॉल होता है उसमें बहुत कम प्रेशर पड़ता है, ओनली 80 mm Hg, इतना ही प्रेशर पड़ता है, इस वजह से इसका वॉल थिन होता है। आर्टरी का क्या होता है, थिक होता है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11, हाउ इज द वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एडॉप्टेड फॉर परफॉर्मिंग द फंक्शन ऑफ एब्जॉर्प्शन इन फूड। तो सब लोग लिख लेंगे कॉपी में, विलाई, ड्यू टू फिंगर लाइक प्रोजेक्शन विलाई द स्मॉल इंटेस्टाइन इज एबल टू एब्जॉर्ब द फूड। बस एक लाइन में इतना ही लिखना है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब और करके दिया है तो ये या तो ये दोनों में से एक ही करना रहता है। देखो यहीं पे मैं बता रहा हूँ, और करके दिया हुआ तो दोनों में से कोई एक। आउट ऑफ गोट टाइगर विच वन विल हैव द लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। देखो बेटा, जो लॉन्गर इंटेस्टाइन होता है वो
हर्बीवर्स में सबसे लंबा होता है। Herbivores has longer intestine than the carnivores because the cellulose required, listen carefully, the cellulose required much time to digest than the meat. Cellulose present in which part of the body? In the plant's body. The plant cell wall is made up by cellulose. So cellulose is directly fed by the goat, not by the tigers. So the cellulose containing food materials like leaves, grasses and stems of herbs required much time to spend in the small intestine. अगर स्मॉल इंटेस्टाइन लंबा होगा तो वो ज़्यादा फूड मटेरियल ज़्यादा टाइम तक स्पेंड करेगा, इसमें ज़्यादा टाइम तक ट्रेवल करेगा। स्मॉल इंटेस्टाइन छोटा होगा तो फूड बहुत कम समय के लिए ट्रेवल करेगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। इस वजह से हर्बीवर्स में चाहे गोट हो, चाहे डियर हो, चाहे बफेलो हो, चाहे काऊ हो, जो प्योर हर्बीवर्स होते हैं उसमें स्मॉल इंटेस्टाइन लंबा होता है। रीजन क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन लंबा होगा तो फूड जितना उसमें ट्रेवल करेगा, जितना लंबा टाइम स्मॉल इंटेस्टाइन में रहेगा उसमें डाइजेस्ट होने के चांस ज़्यादा रहेंगे। अदरवाइज जैसे ही खाएगा वैसे ही बाहर। ठीक है, तो लिखेंगे एज वी ऑल नो दैट सेलुलोज रिक्वायर्ड much time to spend in the small intestine to compare than the meat. So goat has longer small intestine than the tiger. ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। देखो जो हमारा ये बायोलॉजी का पेपर है ना, उसमें 27 मार्क्स के बायोलॉजी है, 27 मार्क्स के। आउट ऑफ 80 द 27 मार्क्स बायोलॉजी। टोटल 36 क्वेश्चन है तो 12 क्वेश्चन बायोलॉजी का है, नो डाउट। लेकिन 27 नंबर जो है वो 80 में से 27 नंबर जो है बायोलॉजी का है। तो ऐसे ही आपको एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे, अबाउट 1/3 ऑफ द टोटल क्वेश्चन। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन नंबर 12 में क्या पूछ रहा है? एक्सप्लेन हाउ ओजोन बीइंग अ डेडली पॉइजन कैन स्टिल परफॉर्म एन एसेंशियल फंक्शन ऑफ आवर इन्वायरमेंट। कह रहा है कि ओजोन बहुत ज़्यादा जहरीला होता है फिर भी वो हमारे लिए एसेंशियल फंक्शन प्रोवाइड करता है इन्वायरमेंट में। क्यों? मैंने क्या बताया था? ओजोन एटमॉस्फेयर के 2 डिफरेंट लेयर्स में होता है। जो हमारे देखो, एक तो होता है ट्रोपोस्फियर्स और एक होता है स्ट्रेटोस्फियर्स। ट्रोपोस्फियर्स का ओजोन जो होता है वो बैड ओजोन होता है। द ओजोन इन द ट्रोपोस्फियर्स आर कॉल्ड बैड ओजोन। जो अर्थ से नियर अबाउट, अर्थ है, ये अर्थ है, अर्थ के एकदम पास होता है ना, उसको बोलते हैं ट्रोपोस्फियर। जो अर्थ के एकदम पास होता है उसको ट्रोपोस्फियर्स बोलते हैं, और जो अर्थ से थोड़ा दूर होता है उसको बोलते हैं स्ट्रेटोस्फियर्स। ये स्ट्रेटोस्फियर से, ये ट्रोपोस्फियर से। ठीक है, तो ट्रोपोस्फियर वाला ओजोन जो बैड ओजोन है वो हमारे अगर बॉडी में इंटर करता है या किसी भी लिविंग बॉडी में इंटर करता है तो वो नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, लेकिन वो इंटर नहीं करता है, वो एनवायरनमेंट में रहता है और अल्ट्रावायलेट, हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज को ट्रैप करता है। और हार्मफुल अल्ट्रावायलेट अगर ट्रैप ना हो ट्रोपोस्फियर्स और स्ट्रेटोस्फियर्स में तो क्या होगा? वो सीधे हमारे बॉडी के साथ अल्ट्रावायलेट रेज जो है रिएक्ट करेगा और हमारे लिए तमाम तरह का कैंसर काज करेगा। तो ये आपको जानना है कि द ओजोन मे बी टॉक्सिक एंड डेडली पॉइजन येट इट परफॉर्म अ शील्ड ओवर द अर्थ एंड ट्रैप द हार्मफुल यूवी रेज। क्लियर है? चलो आते हैं नेक्स्ट। गिव रीजन वाई फूड चेन कैन नॉट हैव मोर देन 4 ट्रॉपिक लेवल। ये क्वेश्चन पूछा है। देखो फूड रीजन पूछ रहा है कि ये 4 ट्रॉपिक लेवल से ज़्यादा क्यों नहीं होगा। देखो एक प्रोड्यूसर है, इसको कौन खाता है? प्राइमरी कंज्यूमर। इसको कौन खाता है? सेकेंडरी कंज्यूमर। इसको कौन खाता है? टर्शियरी कंज्यूमर। यानी कुल कितने ट्रॉपिक लेवल हो गए? 1 2 3 4। इससे ज़्यादा होगा तो क्या होगा? जितना लंबा फूड चेन होगा उतना ही कम अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलने के चांस लास्ट लेवल ऑफ ट्रॉपिक लेवल वाले ऑर्गेनिजम्स को होगा। तो लिखेंगे कॉपी में, एज द फूड चेन लॉन्गर देयर इज वेरी लीस्ट चांस टू गेट द एनर्जी फॉर द लास्ट ट्रॉपिक लेवल। सो द फूड चेन इज नॉट आइडियल। फूड चेन, द लॉन्गर फूड चेन इज नॉट आइडियल फॉर एन इकोसिस्टम। क्लियर है ना? ये बातें मैंने आवर इन्वायरमेंट चैप्टर में ही बता दिया था। इसके अलावा अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप लाइव क्लासेस में या वीडियो सेक्शन के साथ आप इसको डिस्कस कर लेना। ठीक है, स्टेट द रोल ऑफ पेंक्रियाज इन डाइजेशन ऑफ फूड। कह रहा है कि पेंक्रियाज का रोल क्या है फूड के डाइजेशन में। ठीक है, सो एज यू ऑल नो पेंक्रियाज सीक्रेट वेरी स्पेशल टाइप्स ऑफ
enzyme that is known as trypsin, that is known as trypsin, also the lipase and amylase. Listen, these three enzyme is very essential. Trypsin help to digest protein and convert protein into amino acids. Lipase help to digest lipid, that is convert into the fatty acid and glycerol, fatty acid and glycerol. And amylase help to digest the starch and convert into maltose. So trypsin is protein digestive enzyme, lipase is lipid digestive enzyme, and amylase is starch digestive enzyme secreted by the pancreas. So pancreas help in the very essential role of food digestion. क्लियर है इतनी बातें। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, असर्शन रीजन है, इसको मैंने इसका रूल्स आपको बताया था कि इसमें आपके दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो दोनों सही होते हैं या फिर एक सही होता है एक गलत होता है। इसमें करना क्या है कि इसमें देखो ऑप्शन में रूल दिए रहते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 14, 15 एंड 16 सीधी सी बात है कि एक फिजिक्स का होगा, एक केमिस्ट्री का होगा, एक बायोलॉजी का होगा, ठीक है। क्या दिया है, 2 स्टेटमेंट्स आर गिवन, वन लेबल्ड असर्शन एंड अदर लेबल रीजन, यानी कि एक असर्शन है और दूसरा क्या उसका रीजन है। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चंस फ्रॉम द कोड ABCD एज गिवन बिलो। अब ए कब आंसर होगा, ए बोथ ए एंड आर ट्रू, यानी कि दोनों असर्शन और रीजन दोनों सही होंगे, और आर जो है असर्शन का एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा, तब जाके हम ऑप्शन ए पुट करेंगे। बी को कब पुट करेंगे, जब दोनों सही होगा लेकिन आर जो है ए का करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट जो है एक्सप्लेनेशन नहीं होगा, यानी कि असर्शन रीजन दोनों अपनी अपनी जगह पे सही होंगे, लेकिन रीजन असर्शन का एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होगा। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे मैं बात कर रहा हूँ, जैसे मिलेनिया ट्रंप डोनाल्ड ट्रंप की वाइफ है, ठीक है। बी करके आते हैं, नरेंद्र मोदी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं। अब ये बताओ, ऑप्शन असर्शन जो दिया है मैंने, ठीक है, असर्शन जो दिया है वो सही है, स्टेटमेंट सही है, मिलेनिया ट्रंप डोनाल्ड ट्रंप की वाइफ है, सबको पता है। असर्शन बी भी सही है भाई, नरेंद्र मोदी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर है। क्या असर्शन ए का बी से कोई लेना देना है, नहीं, तो इस हिसाब से ऑप्शन ये हमारा आर ऑप्शन जो है बी सही हो जाएगा इस हिसाब से। लेकिन यहाँ पे हम अब अकॉर्डिंग टू बायोलॉजी चेक करते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चेक करते हैं कि क्या होगा। देखो, जब ए असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है, और रीजन जो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है तो ए होगा, दोनों सही है लेकिन रीजन जो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं तो बी सही होगा, दोनों सही है लेकिन ये ए जो है असर्शन रीजन है और असर्शन जो है वो ट्रू है और रीजन फॉल्स है, असर्शन फॉल्स है रीजन ट्रू है, तो हम डी लिखेंगे। तो सी और डी का भी रूल खत्म हो गया, ठीक है। अब आते हैं, हम चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 ही बायोलॉजी का है, इसमें क्लियर है ना। चलो आते हैं, क्वेश्चन क्या दिया है, फूड चेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एंट्री ऑफ हार्मफुल केमिकल्स इन आवर बॉडी। ये सही है, 100% सही है। आपने पढ़ा होगा बायो मैग्निफिकेशन, आपने पढ़ा होगा बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या होता है, द एक्यूमुलेशन of toxic substances through different parts of our food chain is known as biological magnification। फूड चेन के थ्रू, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फूड चेन के थ्रू टॉक्सिक सबस्टेंसेस के मूवमेंट्स को क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। यानी फूड चेन ही रिस्पॉन्सिबल है एंट्री ऑफ हार्मफुल केमिकल सबस्टेंसेस के लिए। द लेंथ ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फूड चेन वेरी ग्रेटली। अब ये भी सही है, लेंथ ऑफ फूड चेन जो है, फूड चेन का वो अलग अलग हो सकता है, बट ए का असर्शन का रीजन से यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है। असर्शन अलग कहानी अलाप रहा है और रीजन अलग कहानी अलाप रहा है। इस बेस पे हम बोल सकते हैं कि ऑप्शन बी सही होगा इसके लिए। 15 के लिए ऑप्शन बी सही होगा। रीजन क्या है कि दोनों इसमें करेक्ट है, लेकिन जो आर है रीजन, ठीक है, इसमें असर्शन भी ठीक है अपनी जगह पे, रीजन भी ठीक है, लेकिन रीजन जो है असर्शन का एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। क्लियर है ना। अब ये दूसरा दिया है, क्या दूसरा और करके आते हैं, इसको भी आप कर सकते हैं। इसमें क्या दिया है, देखो बायोलॉजी में और दे दिया, बाकी आप ऊपर वाले 14 नंबर में देखेंगे इसमें ऑप्शन नहीं दिया, इसमें आपके पास ऑप्शन है।
ग्रेटर द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आर प्रेजेंट इन लोअर ट्रॉपिक लेवल, कह रहा है कि ग्रेटर ऑफ इंडिविजुअल प्रेजेंट इन लोअर ट्रॉपिक लेवल, लोअर ट्रॉपिक लेवल में इंडिविजुअल के नंबर्स ज़्यादा होते हैं, ये सही है। जितने भी लो ट्रॉपिक, जैसे हम आते हैं प्रोड्यूसर पे, तो आपको प्लांट्स की वैरायटी ज़्यादा देखने को मिले। टॉप लेवल कंज्यूमर लायन, टाइगर, इसकी वैरायटी एक दो मैंने बोल दिया, ठीक है। यानी कार्निवर्स की वैरायटी आपको कम और लोअर ट्रॉपिक लेवल में आपको ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलेगा, यानी ये सही है। द फ्लो ऑफ एनर्जी इज यूनिडायरेक्शनल, ये ट्रॉपिक लेवल को अलाप रहा है और ये फ्लो ऑफ एनर्जी को अलाप रहा है, यानी कि ये भी स्टेटमेंट बी होगा। यानी कि दोनों स्टेटमेंट सही है, असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है। लेकिन असर्शन जो है वो जो रीजन दिया है वो असर्शन का एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। फ्लो ऑफ एनर्जी यूनिडायरेक्शनल होती है, सबको पता है, लेकिन असर्शन का एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन ये नहीं है, ठीक है ना। तो इसको आप कॉपी में लिख लीजिए। इसमें से एक बार और रिवाइज कर दे रहे हैं। 15 में ये दोनों स्टेटमेंट सही है, बट दोनों केस में रीजन जो है असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, देखने से ही पता चल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ गए। जेनेटिस्ट क्रॉस द पी प्लांट हैविंग वायलेट फ्लावर विथ पी प्लांट विथ वाइट फ्लावर, ही गॉट ऑल वायलेट फ्लावर इन फर्स्ट जनरेशन। कह रहा है साइंटिस्ट जो है वायलेट फ्लावर वाले प्लांट का वाइट फ्लावर वाले प्लांट के साथ क्रॉस करवाया, तो अगले जनरेशन में उसको क्या मिला, सारे फ्लावर वायलेट मिले। ये स्टेटमेंट सही है। वायलेट फ्लावर ऑफ पी प्लांट इज डोमिनेंट ओवर वाइट फ्लावर ऑफ पी प्लांट्स, दैट्स वाई ओनली द वायलेट फ्लावर पास इनटू द नेक्स्ट जनरेशन। सो द स्टेटमेंट ए assertion is correct. The statement for the assertion is correct. Now the reasons: white color genes is not passed on to the next generation. This statement is also correct. In this way, when the violet and white both genes are involved, then to compare then the violet, the genes for the white color is recessive, which is not passed into the next generation. तो ये assertion and reasons are both correct and reasons are the correct explanation of assertion, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन नंबर 16 का ए हो जाएगा। ए एंड आर बोथ आर द करेक्ट स्टेटमेंट, बट द आर द रीजन्स आर द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द असर्शन, ठीक है। तो ये आप अपने लैंग्वेज में कर लेंगे, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से वीडियो लेक्चर में आप इसको क्लियर कर लेंगे, ठीक है। अब 16 तक इसमें हम लोग पार्ट 1 में 16 तक इसमें सॉल्व किए हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम 17 ऑनवर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।